Good morning, beta. Today again we will repeat that topic with the help of figure. Digestion process or digestive system in human being. So I have tried to make a figure, but it is not a exact figure is given in textbook. So please see from there. Mouth, salivary gland, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, rectum, anus, and that is appendix, largest gland which is liver, and gallbladder where bile juice will be stored. So let's start the process. Digestion process complete in human being with the help of 5 steps. First step start with the mouth, that is known as ingestion. First we will intake the food. After intaking the food will be start digestion process will start in the mouth only. माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है. डाइजेशन मीन्स जस्ट ब्रेकिंग डाउन द लार्जर और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू द सिंपलर फॉर्म. जब हम उसको एकदम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, अब वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरे बॉडी में. ओके, सो थ्रू द माउथ विच इज ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, उसके थ्रू हम फूड को इंटेक करेंगे, दैट इज इंजेशन. ओके, वेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ which secrete the enzyme which is known as salivary amylase. Salivary amylase will break down the starch present in the food in the simpler sugar or simpler form of starch. Okay, so digestion process will start in a mouth, in which digestion of start from the mouth. अगर क्वेश्चन आएगा डाइजेशन ऑफ स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, so we will say that from the mouth. So where digestion will start and starch will convert into simpler sugar. Sugar and starch both are the form of carbohydrates. And after that you know that जब हम फूड खाते हैं बेटा तो वो वाटरिंग हो जाता है, गीला हो जाता है, क्योंकि सलाइवा की वजह से which is secreted by the salivary gland. After that food will reach to the esophagus, which is also known as food pipe. One end of food pipe is connected to the mouth and another end is connected to the stomach, and then food will start moving through the esophagus and reach to the stomach. And esophagus or food pipe contain the muscles, and you know that muscles work in a contraction relaxation process के थ्रू में वर्क करती है. either it is present in heart or hand and legs, कहीं पे भी प्रेजेंट है बेटा मसल्स तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है. सो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन it is easy for food to move in a downward direction. slowly easily contract होगा फिर relax होगा तो food क्या होगा, easily move करेगा. and this movement is known as peristaltic movement. okay बेटा, ऐसे movement को हम बोलते हैं peristaltic movement. spelling is P-E-R-I-S-T-A-L-T-I-C. okay बेटा, peristaltic movement in an esophagus by which food moves in the stomach is known as peristaltic movement. okay, after that J shape का जो फिगर दिख रहा है that is stomach. okay बेटा, then food will reach to the stomach, where in the stomach partial digestion, आगे का जो further digestion है it will take place in a stomach release some gastric juices. Those gastric juices are pepsin, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड ऑल्सो मेक द फूड एसिडिक. फूड को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो फूड पे वर्क करके उसको एसिडिक बना देगी, एसिड बना देगी. ओके बेटा, व्हाट इज द ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ म्यूकस. Mucus is the present in the mucus prevent the or protect the inner lining of the stomach from the effect of acid. अगर mucus नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, स्लोली इनर लाइनिंग जो है डिस्ट्रॉय होने लगेगी स्टमक की, जिससे क्या होगा, एक बोलते हैं अल्सर हो जाएगा, जिससे बोलते हैं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, दैट इज नोन एज अल्सर. जब स्टमक में किसी को बोलते हैं अल्सर हो गया, इट्स मीन दैट म्यूकस रिलीज नहीं हो रहा है और वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है एसिड से. ओके, and one more is juice is released, that is pepsin. okay, hydrochloric will kill the bacteria present in the food as well as make the food acidic, and then mucus prevent the
inner lining of the stomach, and then pepsin. अब what is the use of pepsin? क्या है बेटा? Pepsin break down the proteins present in the food. स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में. प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? स्टमक में. So one of the nutrients present in the food, that is protein. So protein will be digested by the pepsin. Pepsin will digest the protein into the simpler form. Okay बेटा. एंड अगर एसिड रिलीज नहीं होगा और वो फूड को एसिडिक नहीं करेगा तो प्रोटीन उस पर वर्क नहीं कर पेप्सिन उस पर वर्क नहीं कर पाएगा. तो ये चीजें ध्यान रखना है बेटा. जब तक फूड का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा. पेप्सिन वर्क करेगा देन अब यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा आपका स्टमक में सिंपलर फॉर्म में. तो यहाँ पे स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, फूड मूव करके स्टमक में आया, जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, फूड को एसिडिक किया HCl ने एंड किल किया बैक्टीरियाज को और म्यूकस ने प्रिवेंट किया. आफ्टर दैट फूड विल मूव फ्रॉम स्टमक टू रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6.5 मीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो 1.5 है. मतलब लेंथ छोटा है फिर भी उसको लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं बेटा बोलते हैं, वाइडनेस के अकॉर्डिंग. ये लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है ज्यादा वाइड है, ज्यादा चौड़ी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बहुत कॉइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत पतली होती है. सो वाइडनेस के अकॉर्डिंग लार्ज एंड स्मॉल बोलते हैं, ना कि लेंथ के अकॉर्डिंग. ये चीजें ध्यान रखना बेटा. ओके. Then from the stomach food will reach to the small intestine. In human being complete digestion process will take in a small intestine. Okay, one more thing, one important thing बेटा, different animals में small intestine का जो length होता है बेटा वो अलग अलग होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली जो हर्बीवोरस होते हैं उनमें बहुत बड़ा लेंथ होता है कंपेयर टू द कार्निवोरस. वाई? कार्निवोरस जनरली ईट द फ्लैश ऑफ द मीट और एनिमल्स. मतलब वो कार्निवोरस जो होता है दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एंड जो हर्बीवोरस होता है वो ग्रास फिश खाते हैं बेटा. सो डाइजेशन ऑफ ग्रास इज डिफिकल्ट टू द कंपेरिजन ऑफ द डाइजेशन ऑफ अदर एनिमल्स. अगर हम मीट खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करना इजी है बेटा कंपेयर टू द ग्रासेस. वाई? ग्रासेस में एक टाइप का प्रोटीन या एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सेलुलोज. सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. सो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो उसको प्रॉपर पोजीशन, प्लेस, टाइम मिलेगा डाइजेस्ट करने के लिए. सो इसलिए हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है क्योंकि वो लोग ग्रासेस खाते हैं. ग्रासेस में सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनका हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लेंथी होता है कंपेयर टू द कार्निवोरस जो मीट खाते हैं उसमें शॉर्ट होता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं होता है बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ बैक टू द ह्यूमन बीइंग. फूड विल मूव फ्रॉम द स्टमक एंड रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके बेटा, एंड आफ्टर दैट बैक टू द लीवर पे आ जाओ. फूड डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक से लीवर या पेनक्रियाज में नहीं जाता है. ये चीजें क्लियर. तो फिर इनका रोल क्या है? लीवर सीक्रेट अ बाइल. बाइल सीक्रेट करता है, एक लिक्विड होता है विच कंटेन टू थिंग, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. ओके, फर्स्ट विल टॉक अबाउट बाइल जूस. ये लीवर है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग विच सीक्रेट बाइल जूस और एंड बाइल सॉल्ट विच इज स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर. टेम्पररली स्टोर होता है, परमानेंटली नहीं. बाइल जूस क्या करता है बेटा? बाइल जूस फूड को अल्कालाइन और बेसिक बनाता है. फूड इसके पहले क्या था? HCl ने उसको एसिडिक किया था, अब यहाँ पे वो अल्कालाइन हो जाएगा और बेसिक हो जाएगा. अब बेसिक क्यों होगा? वहां पे पेप्सिन की प्रॉब्लम थी कि अगर उसको अल्कालाइन नहीं मिलेगा, एसिडिक नहीं मिलेगा स्टमक में तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा. अब यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट की प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसको फूड बेसिक नहीं मिलेगा तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा. ये चीजें आप याद रखना. बाइल जूस विल मेक द मीडियम एसिडिक बेसिक और अल्कालाइन ऑफ द फूड एंड बाइल सॉल्ट क्या करेगा? बाइल सॉल्ट विल ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द सिंपलर फॉर्म. जो फैट के बड़े बड़े पार्ट्स है, टुकड़े हैं, जो कॉम्प्लेक्स है फैट, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. कौन? बाइल सॉल्ट, बाय ब्रेकिंग डाउन द पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म. दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स.
अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बेटा. सो द प्रोसेस बाय विच bile salt break down the fat present in the food into the simpler form is known as emulsification of fat. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कब होगा? जब फूड का मीडियम बेसिक होगा. उसको बेसिक कौन करेगा? बाइल जूस. ये यहां से सीक्रेट होके वहां जाएगा. तो लीवर का पार्ट ओवर हो गया. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. एक चीज याद रखना एमसीक्यू में. नाउ पैनक्रियाज व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट पैरेलल. देखो पैरेलल है स्टमक के, नियरली पैरेलल टू द स्टमक ये स्ट्रक्चर है. पैनक्रियाज रिलीज 3 एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होता है बट 10th के स्टैंडर्ड से जो हमें फोकस करना है वो 3 एंजाइम्स पे फोकस करना है, विच इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन. ओके बेटा, अब एक एक की बात करते हैं कि इनका क्या यूज है. फूड आपका पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं. डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहां पे स्टार्ट होता है? इन द माउथ. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां पे स्टार्ट होता है? इन द स्टमक. डाइजेशन ऑफ फैट कहां पे स्टार्ट होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है. ओके बेटा, सो 3 जूसेस ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज, ये 3 जूसेस रिलीज होता है पैनक्रियाज से और वो भी रीच करता है कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अंडरस्टूड बेटा? वेयर देखो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन प्रोनाउंसिएशन आर सिमिलर. सो पेप्सिन ने क्या डाइजेस्ट किया था स्टमक में? प्रोटीन्स को. सो ट्रिप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स को और फर्दर डाइजेस्ट करके और सिंपलर करेगा. देखो बेटा डाइजेशन प्रोसेस का मतलब ही होता है फूड को आप सिंपलर करते जाओ, सिंपलर करते जाओ. कब तक? जब इजीली वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो सके. जो ज्यादा जो हम फूड लेते हैं इतना कॉम्प्लेक्स होता है. आप सोचो क्या ये ब्लड वेसल से ट्रेवल कर पाएगा? डायरेक्टली हर पार्ट्स में हम भेज दें, इट इज नॉट पॉसिबल. तो उसको हम तब तक ब्रेक करेंगे जब वो वाटर सोल्यूबल हो जाए और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए ब्लड से. तो और इसका और ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन्स का. पहले ऑलरेडी ब्रेक डाउन हुआ है स्टमक में, यहां पे और ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपलर फॉर्म में. देन लाइपेज इज मेड अप ऑफ जस्ट लिपिड्स. लिपिड्स मतलब होता है फैट्स. तो लाइपेज जो रिलीज हो रहा है बेटा वो फैट को डाइजेस्ट करेगा. किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को. उसको डाइजेस्ट होने के लिए उसको मीडियम चाहिए बेसिक, जो ऑलरेडी बाइल जूस ने कर दिया है और बाइल सॉल्ट ने उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर भी कर दिया है जिससे इजिली लाइपेज उस पर वर्क कर सके. थर्ड पैनक्रियाटिक अमाइलेज. हमने यहां देखा था सलाइवरी अमाइलेज जिसने स्टार्च को सिंपलर शुगर में ब्रेक किया. यहां पे इसको और ब्रेक करेगा अमाइलेज और सिंपलर फॉर्म में लेके जाएगा. आफ्टर दैट बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स है वो भी कुछ जूसेस रिलीज करते हैं. दैट इज नोन एज इंटेस्टिनल और इंटेस्टाइनल जूसेस. वो जूसेस उस पर वर्क करके डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. देन क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और सिंपल शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में. सबसे कंप्लीट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. प्रोटीन्स फाइनली जो कन्वर्ट हो जाएगा सबसे लास्ट में अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल में. एंड फैट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड. तो हमें क्या रिजल्ट में मिला फूड से? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज. ये सभी वाटर सोल्यूबल है, इजिली ट्रांसपोर्टेबल है. अब क्या होगा बेटा? इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज विली. अब डाइजेशन प्रोसेस इज ओवर बेटा. हमने अब तक पहले था इंजेक्शन इनटेक फूड एंड अब तक जो पूरा बात हुई दैट इज डाइजेशन. अब हमारा तीसरा स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन. नाउ उसके बाद क्या होगा? विली इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, walls of the small intestine which will increase the area. जो फूड हमने लिया है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड लेने के लिए एरिया को इंक्रीज करेगा जिससे फूड इजिली वहां पे एब्जॉर्ब हो सके. एंड villi are connected to the blood vessels and then absorption process is over. फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा इस विली के थ्रू, एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड वेसल्स में एंड आफ्टर दैट इट विल ट्रांसपोर्टेड और यू कैन से दैट एसिमिलेटेड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके बाद फूड एसिमिलेट हो जाएगा सभी पार्ट में. देन क्या होगा? रिपेयर, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फॉर डूइंग जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए. ये सब जो ह्यूमन बीइंग यूजेस है उसके लिए वो यूज हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा? आफ्टर दैट जो लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा. लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें भी विलीज प्रेजेंट होती है. वो उस फूड में से वाटर को फिर से रीएब्सॉर्ब कर लेगी, वापस ले लेगी. तो इसका मतलब वाटर हमने ले लिया अनडाइजेस्टेड फूड में तो फूड कैसा हो गया?
सॉलिड, जो सुबह हम एक्सक्रीट करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में जनरली रहता है। वाटर समटाइम रिलीज उसमें से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो हम बोलते हैं लूज मोशन, राइट्स मीन दैट वाटर उसका रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली नीचे जा रहा है, इसका मतलब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली वर्क उस टाइम नहीं कर पा रहा है। देन फूड बेटा जो अनडाइजेस्टेड है वो पहुंच जाएगा रेक्टम में, रेक्टम में स्टोर रहेगा बेटा, ओके। फिर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो उस टाइम ये एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा, ओके। यहां पे मसल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज स्फिंक्टर मसल, और वही स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होती है स्टमक में भी। स्फिंक्टर मसल क्या करती है, पुश करती है फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में, ओके बेटा। इस तरह से फूड आपका बाहर हो जाएगा, दैट इज इजेशन। नाउ अपेंडिक्स का क्या रोल है बेटा, अर्ली टाइम में जो पहले ह्यूमन थे वो ग्रासेस, डिफरेंट फूड, रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करते थे विच कंटेन्स सेलुलोज। तो सेलुलोज डाइजेस्टिंग के लिए आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि गाय भैंस जो होती है, कैटल्स होते हैं, रूमिनेंट्स, दे कैन डाइजेस्ट ग्रासेस बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट। व्हाई? क्योंकि सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सम बैक्टीरिया जो होती है विच इज प्रेजेंट इन द कैटल्स एंड रूमिनेंट्स, grass eating animals, but it is not present in human being, that's why we cannot digest cellulose. Understood बेटा? अर्ली टाइम में लोग खाते थे तो उस टाइम इट कंटेन्स सम गुड बैक्टीरियाज विच वर्क्स ऑन सेलुलोज एंड डाइजेस्टेड इट, बट नाउ टोटल वे ऑफ लाइफ हमारी चेंज हो गई। अब हम कुक्ड फूड खाते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके कम होती गई। सो स्लोली टाइम ज़्यादा क्रॉस हुआ, उसके बाद ये टोटली एक वेस्टिजल ऑर्गन बन के रह गया, वेस्टेज ऑर्गन। अब इसका कोई यूज नहीं है। हम समटाइम कभी प्रॉब्लम होती है, फूड वहां पे चला जाता है तो बोलते हैं अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, तो उसको डॉक्टर कट करके निकाल भी देते हैं बॉडी से। ये हमारे लिए इस ऑर्गन का अब यूज नहीं है अपेंडिक्स का, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। बाकी डाइजेशन प्रोसेस में जो है आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है इस लेसन को ओवर होने के बाद, डाइजेशन इन ह्यूमन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इसका मैं डिटेल्स नोट आई विल ट्राई टू राइट एंड देन आई विल गिव यू बट आफ्टर फिनिशिंग द लेसन। इसमें अगर आपको किसी पार्ट्स के कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज इन्फॉर्म मी एंड रीड द लेसन। थैंक यू बेटा।